Oh, thank you, Lakshmi, for your presence of mind. You can see there that I am not recording. It comes there. Yes, ma'am. Okay. See, I forgot. I went on. So, in divisional, there is a company, a large, or usually in large organizational, this divisional structure is followed. Large organization where more than one product, okay, more than one type of product is produced. Means like they are dealing in footwear, they are dealing in cosmetics, they are dealing in food products, they are dealing in skincare, like that. So many products they are dealing in. So what will happen? They will have one head, IMD, and different departments. What they will be having? Food product, footwear, skin product, and what is that? One more some so many products. But under those products, under every product, there are different divisions, means departments are there. For food, there is a HR department. For food, there is a finance department. For food, there is a marketing department. For food products, there is a research and development department. For food, there is a purchase department. Like that, under every product, different divisions, departments are there. Like that, same way for footwear also. For footwear, HR department is there. For footwear, finance department is there. For footwear, marketing is there. For footwear, research is there, purchase. Like that, for skincare, same like that, so many departments. Like that, under every head for every product, different divisions, different departments are there. So this is divisional structure. Okay, this is what we studied last class, and under this we studied what are the advantages and disadvantages of your divisional structure also. Then we understood the distinction, means what is a comparative study between functional and divisional on certain points. Based on certain points, what is the distinction? And 5 to 6 points are there. How it is on formation, specialization, responsibility, managerial development, cost, and coordination. On these 6 points, we have understood the distinction, the difference between functional and divisional. Okay. Then yesterday, you all are not there. We had, as it is decided, that we should start with the revision with first module. But then nobody responded. I was just asking. Nobody is even yes, no, we are ready. Madam asked. So I thought somehow I didn't find any interest in them. So I started with the topic. But last, before I ended, I just started with the first topic, characteristics. It was only Abhishek who answered 1 or 2 points. Rohan was there. Rest all had gone offline. Nobody was seen. In the beginning, all were there. But later, only Abhishek and Rohan were left. On the screen, I could see only those two names. And only Abhishek is not keeping well, but still he answered some points, 1 or 2 points. So still nobody has joined except for Lakshmi Gaste, Mitali, and Om. I am not hearing anything from Om's side. Om, are you there? Or just you have come for formal? Om? Om? I am not hearing anything. Lakshmi and Mitali, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Mitali? Yes, ma'am. ऐकू येते ना? ठीक आहे. So yesterday we started, Lakshmi, you were not there. Formal. Now there are different types of organizations are also there. Structure we understood. What type of company it is? Structure, functional structure, and divisional structure we understood. Now organizations are also there, different types. One is formal organization, another is informal. A formal organization means what? Now when simple example I gave, now this is regarding any organization, but I will come to you for you to understand the simple basic meaning, to understand the concept. What is formal? Now in your own dressing also, formal and informal dressing. When I say you must come to the college formally dressed, then कैसे आओगे आप लोग? फॉर्मली ड्रेस मीन्स किस तरह से आते हैं? फॉर्मल ड्रेस मीन्स किस तरह से आओगे? तो तुम्हारा शर्ट, ट्राउजर जो भी है, बेल्ट वेल्ट, टाई जो भी है लगा के, कई कंपनीज में फॉर्मल ड्रेसिंग होते हैं, जैसे एकदम सिस्टमेटिक, वेल डिफाइंड. मीन्स व्हाट इज फॉर्मल? मीन्स इट इज अ वेल डिफाइंड सिस्टम. है की नाही लक्ष्मी, मिताली? फॉर्मल म्हणजे कसं? फॉर्मल ड्रेस करून या म्हटलं तर कसं येतं? अगदी पद्धतशीर व्यवस्थित ड्रेस करून, युनिफॉर्म काय आहे, शर्ट आहे, पॅन्ट आहे, बेल्ट टाय वगैरे लावून एकदम आयडेंटिटी कार्ड, मीन्स यू आर सिस्टमॅटिकली ड्रेस्ड. येस ऑर नो? So like that, formal organization means what? Similar, it is a formal organization is one which has a system,
where there is a system. Lakshmi, can you hear me? Mitali? Yes, ma'am. So what it is a system, as it's a well defined system, म्हणजे अगदी पद्धतशीर असणारा ऑर्गनायझेशन कंपनी जिथं अगदी सगळं पद्धतशीर चालते, जहाँ पर सब एकदम सिस्टमेटिक वेल डिफाइंड मीन्स किसका पोजीशन क्या है, व्हाट इज दैट वेल डिफाइंड, कुणाला कुठला पोस्ट आहे, वो कौन से पोस्ट पर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब कुछ सिस्टमेटिकली डिफाइंड रहता है. और उसी तरह से और क्या रहता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, सब कुछ वेल डिफाइंड रहता है, सिस्टमेटिक रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, पोजिशनिंग, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड. Why? Because it is governed by, if that company is, the formal organizations are governed by rules and regulations. वहाँ पर rules and regulations follow करते हैं, इसलिए सब कुछ well defined है, क्योंकि वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं. और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाते हैं, दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बीन सेट बाय, हु इज सेटिंग दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर प्रॉपर. क्यों चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि प्रॉपर, अभी तुम लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों चाहिए, क्योंकि कॉलेज सही तरीके से सही दिशा में चलना है, इसलिए रूल्स एंड. वैसे कंपनी के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन फॉर्म्ड सो दैट एवरीथिंग इज गवर्नड प्रॉपरली, सिस्टमेटिकली. फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिस्टमेटिक एंड दिस इज वेल डिफाइंड बाय होम. ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह कौन डिफाइन करता है, कौन बनाता है, बाय द मैनेजमेंट. क्यों, क्योंकि हमारे कंपनी का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उस तक अगर हमको पहुंचना है तो इस सब को फॉलो करना जरूरी है. सही समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, लक्ष्मी कुमार, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग Lakshmi Kumar. Good morning, ma'am. Okay, so yesterday you were there, Lakshmi Gasti was not there, so I was repeating. Is it clear, Lakshmi Gasti? Mitali and Lakshmi and Om, all of you understood? So this is formal, क्योंकि यहाँ पर well defined है सब कुछ, everything, positions, responsibility, authority, principles, Good morning, policies. ma'am. Yes, everything is well defined, and in this formal organizations it is governed by rules and regulations. And these rules and regulations क्यों चाहिए, because proper functioning of the company होना चाहिए. और इन सारे rules and regulations को सेटअप कौन करता है, मैनेजमेंट वाले. क्यों, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव गोल अकम्प्लिश करना है, पूरा करना है, इसलिए. ओके, सो दिस इज गुड मॉर्निंग अभिषेक. Good morning, ma'am. Okay, so I was repeating, I was just waiting for all of you to join, my regular students, those who are there. And today I am very happy to see Om, but I have not heard his voice. As yet I am saying good morning Om, but I don't get any response from his side. I do not know whether he is just joined and he is off, sitting somewhere, doing something. Anyway, okay, inform him if he speaks to you, okay, in case. Abhishek. So yesterday we studied what is formal organization, then the features. Now when this system is there in any organization where there is formal organization, well defined rules and regulations, everything is systematically done, then you can see it specifies the relationship. First feature, the relationship among the job positions, because everybody knows what is my job, what is my positioning, okay, what is the type of job I am doing. So the nature of their job and the relationships, this will clarify, because I know what is my job, what is my responsibility, what am I supposed to do, whom should I report. So it is very clear, specifies the relationship among the job positions, among the employees. That is why interrelationship is very clear, and everybody is accountable and responsible to whom to report also. This is the first feature. Second was, why this formal organization is there, why this organization is required. Because, good morning Rohan, because this organization's objective is to reach to, good morning, it is to reach to the objective. When this all systematic rules and regulations are, why they are doing, because they want that their company should be working properly with all these rules and regulations. They want to achieve the specified goal as per the plans that they have laid down according to the rules and regulations.
Why? Because it is very essential. If your company is following the rules and regulations, naturally, whatever you are decided to achieve, you will reach to that. Yes or no? Lakshmi, Abhishek, Mitali, all of you? Yes, ma'am. This is the second feature. Yes, Then ma'am. third is, now everybody knows what is my department, what is my position, what is my responsibility, what am I supposed to do, what are the rules and regulations I am supposed to follow. So when this is there, these efforts, every department is doing that. Every department, finance department, marketing, HR, purchase, sales, every department is putting their efforts. हर कोई अपना अपना एफर्ट्स डाल रहे. तो जब हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट वाइज एफर्ट्स डाल रहे तो हर कोई एक हिसाब से चलता है. कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा से चलता है. सो एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड, इंटीग्रेटेड थ्रू दिस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये सब कुछ सिस्टमेटिक है तो सब कुछ सारे डिपार्टमेंट्स का काम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होता है, इंटीग्रेटेड होता है एंड कोऑर्डिनेशन एकदम सही ढंग से हो जाता है. तो सब सिस्टमेटिकली चलता है. बाद में ये सब कौन डिजाइन करता है? The feature is, it is designed by the top management because all are professionals, experts and all. So that designed by the top management. And why they are designed this in this systematic way? Because they want that the company should run smoothly. है कि नहीं? जो कोई भी कंपनी चल रहा है, जिनका भी वो ऐसे ही पैसा डाल के नहीं करते, उनके चाहते हैं कि एक सिस्टम होना चाहिए. इसलिए यू मस्ट हैव सीन इन बिग बिग कंपनीज हाउ प्रोफेशनली दे बिहेव. एकदम सिस्टमेटिक रहता है काम. Why? Because of this formal organization. So they are following all these things. So it is designed by the top management. Why? So that it facilitates the smooth running of the organization. And the last point is, it places more emphasis. वो उन लोग ज़्यादा किस पर importance देते हैं? Emphasizes. They emphasize more on the work to be performed. किसने क्या काम करना है, किसको क्या काम पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. एम्फसाइज मोर लेड ऑन द वर्क दैट हैज टू बी परफॉर्म्ड. क्या काम होना है, क्या काम करना है. देन ओनली क्या होता है, अगर इस तरह से काम करते तो हर किसी का, जिसने भी जो भी काम करना है, इंटर रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज इज स्मूथ. This is the last feature. Then yesterday I taught what is the definition. Definition by Louis Allen. What he defined. That definition also we did. So next is advantages. What are the advantages? Now if it is all systematically according to rules and regulations well defined, it is easy to fix the responsibility. क्यों? कि हर किसी को मालूम रहता है मेरा काम क्या है, मैंने क्या काम करना है, मैं किसी को रिपोर्ट करना है. तो नेचुरली अगर मैं नहीं करती हूँ तो कोई भी मुझे सवाल कर सकता है. आपका ड्यूटी था, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आपने क्यों नहीं किया, ये मुझे पूछ सकते हैं. So what has the advantage? Easy to fix the responsibility. So because mutual relationships are clearly defined. हर किसी को मालूम है मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, उसको क्या करना है. हर किसी का relationship is clearly defined and I know what am I supposed to do. If I am not doing, then I am fixed with some responsibility. मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे पूछ सकते. तो ये बहुत easy होता है. एक advantage है formal organization. दूसरा एडवांटेज है, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन. अभी हर किसी को अपना अपना पोजिशनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है तो हर कोई अपना काम ढंग से करता है. तो क्या होता है, रिपीटेशन नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता. मैंने जो काम किया वही अभिषेक नहीं करेगा, जो अभिषेक करना है वही मिताली नहीं करेगी, वही लक्ष्मी नहीं करेगी, वही ओम नहीं करेगा, वही रोहन नहीं करेगा, लक्ष्मी कुमार नहीं करेगी. क्योंकि हर किसी को हमको मालूम है मेरा क्या काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स आई एम सपोज्ड टू फॉलो, व्हाट इज माय पोजीशन, where whom am I accountable. So naturally I will do my work only, she will do her work only. Nobody will repeat each other's work. There will be no duplication of work. Third is unity of command is there. देखो अभी कैसे होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की होती है. अभी टॉप में कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर. डायरेक्टर के बाद कौन आता है, मैनेजर आता है. मैनेजर के बाद कौन आता है, डिपार्टमेंट के मैनेजर इज डिपार्टमेंट हेड वाइज आया. फिर उसके नीचे एग्जीक्यूटिव आता है. एग्जीक्यूटिव के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे एम्प्लॉय. एक सिस्टम है कि नहीं? यस और नो, यस और नो.
हेलो. Yes, ma'am. हाँ, Yes, साहिल ma'am. गुड Yes, ma'am. मॉर्निंग, रोहन गुड मॉर्निंग, ओम गुड मॉर्निंग. न्यू फेसेस टू सी. साहिल नॉट हर्ड फ्रॉम योर साइड. ओम ऑल्सो. रोहन फिर भी मुकुंद. गुड गुड मॉर्निंग बोला. Good morning, ma'am. कौन बोल रहा है? रोहन. मुकुंद. मुकुंद. मुकुंद कहाँ पर बैठा है मुकुंद? अभिषेक के घर पे? मैम. किसके? नहीं रोहन के घर पे. रोहन के घर पे. अच्छा लगता है. आप लोग अपना जिम्मेदारी समझ के अगर आके बैठते हो. अभी हाई टाइम, वेरी लेस टाइम इज रिमेनिंग. यू शुड बी वेरी सिंसियर विथ योर सेल्फ. You whatever you are going to do, it is for you, not for me. So be sincere enough. And when I am telling it is for your sake to read and come, I am saying because if I give question paper and ask you to write, I do not know how far sincerely you are it. At least I wanted to see whether you will answer orally. Some 3 questions I had given. Anyway, we'll see to that afterwards. Okay. I'm happy to see. Only I think Rahul is not there. Yuvraj is not there. Correct? Rahul and Yuvraj are not there. Rest all are there. At least देर से आए, देर आए, दुरुस्त आए, है ना. तो चलो मुकुंद, साहिल, ओम फिर भी जुड़ गए. अच्छी बात है. सो what happens here? Unity of command. Command means what? एक बॉस रहता है. ऊपर का बॉस वहां से किसको आता है? नेक्स्ट वाले को, मैनेजर को. एमडी से किसको आएगा? मैनेजर को. मैनेजर से उसके नीचे का एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर. फिर एग्जीक्यूटिव किसको बताएगा? एम्प्लॉइज को बताएगा. तो दिस यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन. ये जो सिस्टम ऑफ हायरार्की जो होता है, इसको मेंटेन किया जाता है. सो दिस इज एस्टैब्लिश्ड इन द चेन ऑफ कमांड. यू आर स्टडीड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकेंड मॉड्यूल में. यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ा है कि नहीं? क्या भूल गए? अभिषेक, लक्ष्मी, मिताली, हेलो. Yes, हाँ, you are ma'am. studied, no? हाँ, unity of command. So Yes, ma'am. here, what is advantage? Unity of command is maintained through as the established chain of the command. जिस तरह का सिस्टम है, किस तरह से वो स्टेप वाइज जाता है, उसको मेंटेन किया रहता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज. देन इट लीड्स टू इफेक्टिव accomplishment of goals because each employee knows the role he has to do. Yes or no? हर किसी को मालूम है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी, अपनी पोजीशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मालूम रहता है. तो नेचुरली वो लोग हर कोई अपना अपना काम ढंग से रोजमर्रे के हिसाब से अपना अपना करते रहते, ताकि वो अपना कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको अकम्प्लिश कर सके. सो नेचुरली इट विल लीड टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट of the goal because every employee knows what is his role that he has to play. हर किसी को मालूम है मेरा क्या ड्यूटी है, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे क्या करना है. आज मैं ड्यूटी गया तो मेरा ये काम है, मुझे उसको पूरा करना है. क्यों? क्योंकि हमारे कंपनी का गोल ये है, हमको ये टारगेट कंप्लीट करना है, ये ऑब्जेक्टिव पहुंचना है. सो नेचुरली दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज. फॉर्मल में ये सब कुछ सिस्टमेटिक होने की वजह से, वेल डिफाइंड होने की वजह से, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की वजह से ये सब कुछ कर सकते हैं. And the last point is it provides stability. अगर इस तरह का डेफिनेट वेल डिफाइंड सिस्टम अगर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर होते हैं, जिसको टॉप मैनेजमेंट के लोग उसको गवर्न करते हैं, तो क्या होता है? स्टेबिलिटी रहती है. अगर एक सिस्टम एक स्टेबल रहने से कंपनी अच्छे से चल सकती है. सो व्हाट विल हैपन इफ दिस टाइप ऑफ वेल डिफाइंड सिस्टम इज फॉलोड, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड, then the organization, what will happen? There will be stability in the organization because of specific rules and regulations which is like a guide to the employees. So हर किसी को मालूम है हमारी कंपनी के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपनी के प्रिंसिपल्स क्या है, मैं किसको आंसरेबल हूँ, किसको रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस सब मालूम रहने से कंपनी स्टेबल रहता है. दिस इज द एडवांटेज. नाउ द अपोजिट ऑफ दैट इज disadvantage. What is the disadvantages? First thing is it, अभी क्या मैंने बताया कैसे रहता है? यूनिटी ऑफ कमांड. एमडी से मैनेजर, मैनेजर के बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एम्प्लॉय. देखो ये अच्छे से चेन चल रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के तीसरा. अभी ऊपर से ऑर्डर रहना है तो एमडी से जाएगा मैनेजर को, फिर मैनेजर से जाएगा एग्जीक्यूटिव को, फिर सुपरवाइजर, फिर एम्प्लॉय. देखो नीचे तक ऑर्डर आने तक कितना देर लगता है. ये सब प्रोसीजर फॉलो करके आने के लिए कितना देर लगता है कि नहीं?
क्लियर लगता है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो this will lead to procedural delays. प्रोसीजरियल डिलेज, ये डिले होता है प्रोसीजर फॉलो करने में. एस्टैब्लिश्ड चेन जो होता है ना ऑफ कमांड, एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड जो होता है, उनसे ऊपर से नीचे फॉलो होके आने तक इट विल इंक्रीज. वो इंक्रीज टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें. इट इज टेकन, अगर समझो नीचे कुछ इमीडिएट डिसीजन लेना है, कुछ बनाते वक्त उनको तो लगता है नहीं 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 इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, इसको ऐसे करेंगे, कुछ पूछना करना है, तो वो कर नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर आना है. ऊपर से एम्प्लॉय को अगर बोले तो वो बोलेगा मुझे सुपरवाइजर ने ऑर्डर नहीं दिया, सुपरवाइजर बोलेगा मुझे एग्जीक्यूटिव से ऑर्डर नहीं आया, एग्जीक्यूटिव क्या बोलेगा मैनेजर ने अभी नहीं बताया, उनसे परमिशन ले. कोई भी अपने आप मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, एक सिस्टम रहता है वहां पर. फिर क्या बोलेगा मैनेजर, एमडी से पूछना है, एमडी बताएंगे तब मैनेजर बोलेगा, फिर सुपरवाइजर, ऐसे नीचे आएगा. तब तक कितना टाइम जाता है? तो डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगता है, ये प्रोसीजर फॉलो करने में बहुत टाइम लगता है. दिस इज अ डिसएडवांटेज. इज इट क्लियर? तो दूसरा पॉइंट है डिसएडवांटेज, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस. अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये सही ढंग से फॉलो नहीं होता, समझो, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस may not provide, this will not help them in adequate recognition to creative talent. अभी क्या होता है, कई कई ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत से अच्छे, अभी जरूरी नहीं है एमडी के बाद मैनेजर ही बहुत स्मार्ट होगा अभी समटाइम्स, मगर मैनेजर अगर क्रिएटिव है, बहुत टैलेंट है, या समझो एग्जीक्यूटिव बहुत टैलेंटेड है, या सुपरवाइजर, या तुम्हारे एम्प्लॉयज जो भी तुम्हारे कंपनी के नीचे काम कर रहे हैं, उसमें से भी कई बंदे जो होते हैं बहुत स्मार्ट रहते हैं, क्रिएटिव माइंड रहते हैं, बहुत उनके पास क्या नए नए आइडियाज रहते हैं. मगर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है, अरे कोई है तो उसको चांस देंगे, अगर ये तरीका नहीं है तो क्या होता है, ये टैलेंट का कोई यूज नहीं होता. दिस इज द डिसएडवांटेज. इफ पुअर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस आर देयर, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिकग्निशन. अगर किसी को स्मार्ट बंदा है और उसको अगर तुम समझो कोई रिकग्निशन नहीं, अच्छा ये अच्छा है, इसको ये काम में एक्सपर्टाइज है, तो उसको बुला के तुम ये करो, ये रिकग्निशन अगर देने का तरीका नहीं होता है तो इट इज ऑफ नो यूज. दैट पर्सन्स इंटेलिजेंस, हिज क्रिएटिविटी, that qualities are of no use, he will not be recognized. This is the disadvantage. Third, it is difficult to understand all human relationship. देखो हम अपने ही घर में एक दूसरे को पहचानने में भी कितनी बार क्या सक्षम नहीं है. बहुत से बात, एक ही घर में 4-5 लोग मिलकर रह रहे तो भी एक दूसरे को जानने में बहुत तकलीफ होती है, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में. वैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं. सो इज इट इजी? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द ह्यूमन रिलेशनशिप्स. इज इट पॉसिबल? इतने बड़े कंपनीज में एक दूसरे को जानने पहचानने में, इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन एन एंटरप्राइज, एज इट इज प्लेसिंग मोर एम्फसाइज. क्यों नहीं हम एक दूसरे को पहचान सकते और रिलेशन बिल्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसे कंपनीज काम पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, वर्क स्ट्रक्चर एंड वर्क प्रोसीजर पर ज़्यादा काम देते हैं, भाव देते हैं, या मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन और मोर एम्फसाइज इज लेड ऑन वर्क स्ट्रक्चर देन ह्यूमन रिलेशनशिप्स. सो दिस इज द डिसएडवांटेज इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो दिस वॉज फॉर्मल विच आई हैड टोल्ड. ना फॉर्मल का अपोजिट इनफॉर्मल होता है. फॉर्मल का अपोजिट इनफॉर्मल होता है. फॉर्मल में क्या है, एक हेड है एमडी, फिर क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है. तो एक एमडी है, फिर यहाँ परचेज मैनेजर है, देन next is production manager. Hierarchy, chain of command बोल रही हूँ. Production manager, then next is finance manager. एक कंपनी में अगर कोई फॉर्मल कंपनी है तो कैसे होता है, इसे रहता है. फिर परचेज मैनेजर के नीचे कौन रहता है, परचेज एग्जीक्यूटिव जो भी है, हायरार्की जो भी चेन ऑफ सिस्टम इज देयर. फिर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर कौन है,
प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव है, फिर फाइनेंस मैनेजर के नीचे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है। समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? हेलो लक्ष्मी, अभिषेक? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ये फॉर्मल में ऐसे सिस्टम रहता है। एमडी के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस। अभी इस लाइन में परचेज मैनेजर के नीचे परचेज एग्जीक्यूटिव है, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंस मैनेजर के नीचे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, फिर उनके नीचे कोई सुपरवाइजर होगा, फिर उनके नीचे एम्प्लॉयज होंगे, वैसे इसके नीचे सुपरवाइजर होगा, उनके नीचे एम्प्लॉयज होगा। देखो ये कैसे एकदम सिस्टमेटिकली जा रहा है ना, एक के नीचे एक के नीचे एक, Yes, ma'am. ये वाला इसको बताएगा, Yes, ma'am. ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये एमडी को बताएगा। इसको फॉर्मल बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, एकदम सिस्टमेटिकली दिस हायरार्की इज फॉलोड। फॉर्मल में ऐसे होता है, बट इनफॉर्मल में कैसे होता है? इनफॉर्मल में फॉर्मल स्ट्रक्चर ही है, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस ओनली, ऐसा स्ट्रक्चर है वहां पर भी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सब कुछ है, सेम सिस्टम है। फॉर्मल की जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन या परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज मैनेजर है, परचेज एग्जीक्यूटिव है, सुपरवाइजर है, एम्प्लॉयज है, प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव है, सुपरवाइजर है, यहाँ पर भी सब सेम रहेगा इनफॉर्मल में। मगर यूनिटी ऑफ कमांड किससे रहता है, मीन्स किसको किसको आंसर करना है, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप, योर नेटवर्क, तुम्हारा किसके साथ एटीट्यूड, योर इमोशंस, योर रिलेशनशिप इज बिल्ट। कभी कभी ये परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय या सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव है, वो कभी कभार प्रोडक्शन मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका रिश्ता इसके साथ अच्छा है, या इसका रिश्ता फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव के साथ अच्छा है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का परचेज मैनेजर के साथ अच्छा होगा। देखो यहाँ पर कुछ फॉलो होता है क्या? सिस्टम दिख रहा है कुछ? आर दे फॉलोइंग एनी सिस्टम? आर दे फॉलोइंग? हेलो लक्ष्मी, अभिषेक, लक्ष्मी, अभिषेक, Yes, ma'am. हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. हाँ, फॉर्मल में सब सिस्टमेटिक, किसने किसको जवाब देना एक सिस्टम से जाते। इनफॉर्मल में सेम रहेगा, फॉर्मल के जैसे सिस्टम, सब डिपार्टमेंट्स और सब हायरार्की रहेगी, मगर रिपोर्टिंग करना है, जिम्मेदारी, किसको क्या बताना है, इमीडिएटली इसको मन करता है वो इसको बताएगा, इसको मन किया तो वो इसको बताएगा, इसको मन किया तो वो उसको बताएगा। यहाँ पर कोई सिस्टम फॉलो नहीं होता है। इनफॉर्मल, जो जिसको सही लगा, वो जिसके साथ रिश्ता अच्छा है, जिसको सही लगता है वो उसको जवाब देगा या बताएगा। ये सोशल नेटवर्क है, सोशल क्या इसकी वजह से बनता है, रिलेशनशिप की वजह से। सो इट इज बिल्ट ऑन सोशल रिलेशनशिप। तुम्हारा किसके साथ कैसा रिश्ता है, दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन दैट, दैट इज इनफॉर्मल। इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ फॉर्मल ओनली। सिस्टम तो फॉर्मल की जैसे ही रहेगा, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फॉर्मल, बट वेयर फॉर्मल सिस्टम इज नॉट फॉलोड, इट इज इनफॉर्मल। यहाँ पर कोई किसी को कोई सिस्टम नहीं फॉलो करेगा, मीन्स जिसको भी जिसके साथ अच्छा है रिश्ता, जिसको लगता है अर्जेंट है, नहीं नहीं मैं इसको नहीं, मैं अभी ये परचेज वालों को, प्रोडक्शन के वाले को कुछ बताना है, ए तुमने बरोबर प्रोड्यूस नहीं किया, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ये परचेज एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ टेलिंग इस परचेज मैनेजर, अपने ऊपर कौन है, परचेज एग्जीक्यूटिव के ऊपर मैनेजर है या एमडी है, वो इसको बताए बगैर सीधा प्रोडक्शन मैनेजर को बता देगा सर। और क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता उसके साथ शायद अच्छा होगा। वो बताएगा सर जो आया है माल या तुमने प्रोड्यूस किया है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखिए सर, और इमिडिएटली दुरुस्त कर दीजिए, उसको बोल सकता है। तो इनफॉर्मल में ऐसा होता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है एक सिस्टम फॉलो करना है यार, इट इज नॉट फॉलोड इन अ सिस्टमेटिक वे, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप व्हाट दे हैव, अकॉर्डिंगली इट गोज ऑन। समझ में आया एटलीस्ट बेसिक? डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इनफॉर्मल? Yes, ma'am. अभिषेक, लक्ष्मी, Yes, ma'am. गस्ते, कमार, मिताली, रोहन, Yes, ma'am. यस। हाँ, इनफॉर्मल मध्ये फॉर्मल सारखं सिस्टम Yes, ma'am. असते, Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही सिस्टम रहता है। मगर यहाँ पर कैसे, अगर कोई एम्प्लॉय है तो फॉर्मल में किसको आंसर करना है, उसके ऊपर कौन है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से ऊपर कौन है, परचेज एग्जीक्यूटिव को। परचेज एग्जीक्यूटिव से ऊपर का है परचेज मैनेजर को। परचेज मैनेजर किसको बोलना है, एमडी को। ये सिस्टम फॉलो करना जरूरी है वहां पर फॉर्मल में।
इनफॉर्मल में स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होगा, सब डिपार्टमेंट और एक दूसरे के नीचे ऐसे स्टेप रहेगा। मगर किसी को जवाब देना है तो जरूरी नहीं है मैंने मेरे ऊपर जो साहब है उसको ही बताना, वो उसके ऊपर वाले को बताना है, जरूरी नहीं। मेरा अगर रिश्ता दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे के साथ अच्छा है, शायद डायरेक्ट में मैनेजर के साथ भी अच्छा होगा, या मुझे फाइनेंस वाले के साथ अच्छा होगा। सर आप जो खर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें थोड़ा कटौती कर सकते हैं, देखो ये कम कर सकते हैं। अगर परचेज वाले को लगता है तो वो फाइनेंस वाले को बोलता है, फाइनेंस वाले को कुछ लगता है तो वो प्रोडक्शन वाले को बता सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मल के जैसे, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फॉर्मल बट इट इज नॉट इन दैट सिस्टमेटिक और वेल डिफाइंड वे। जैसे फॉर्मल में वेल डिफाइंड होता है, पोजीशन वेल डिफाइंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड है, देन अथॉरिटी इज वेल डिफाइंड, किसने किसको बोलना है। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है, अच्छा एमडी है तो परचेस मैनेजर को बोलेगा, परचेस मैनेजर एग्जीक्यूटिव को बोलेगा, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर, ऐसे वेल डिफाइंड कुछ नहीं है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पर सिस्टम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फॉर्मल बट इट इज नॉट वेल डिफाइंड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो अभी चलते हैं, अभी तुमको पहले मीनिंग उसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए बताया। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड नॉट ऑन एनी फॉर्मल अथॉरिटी। अभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बेस्ड ऑन एनी फॉर्मल अथॉरिटी, जैसे इसमें होता है, कोई फॉर्मल अथॉरिटी पर नहीं है, एंड ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन प्रोसीजर्स, it is not based on any rules and regulations, because informal organization is based on the network. किसका नेटवर्क किसके साथ अच्छा है, किसका नेटवर्क किसके साथ अच्छा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भरोसे पर। सो ऑन द पर्सनल एटीट्यूड्स, किसका इमोशन किसके साथ, हाँ मेरा ये दोस्त है भाई, नहीं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, मेरा रिश्ता इसके साथ अच्छा है तो मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको बताऊंगा, ऐसे है। तो यहाँ पर कोई फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी, बिकॉज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन नेटवर्क, किसका किसके साथ सोशल रिलेशनशिप किसके साथ अच्छा है अमंग द एम्प्लॉइज, इसमें सब सिस्टम है, मगर किसका किसके साथ अच्छा है, किसका किसके साथ अच्छा, उस बेसिस पे चलता है। सो इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल attitudes, emotions. That's why it is called as informal organization. Is it clear? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So this is what you should know. Then next is definition. Definition क्या है? Keith Davis. So definition of informal organization by Keith Davis. Informal organization is a network of, अभी देखो नेटवर्क है, ये सब कुछ एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल, तुम्हारा अपना रिश्ता, पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस not established by the formal organization but which is arising spontaneously, which is arising spontaneously as people associate with one another, जिसका जिसके साथ जैसे रिश्ता है, जिस तरह का रिलेशन बिल्ट है, अचानक स्पॉन्टेनियसली अंदर से मन से आ जाता है, मेरा इसके साथ अच्छा है तो मेरे को जो बोलना है मैं इसको बोलूंगा, वो बोलेगा मेरा इसके साथ अच्छा है रिश्ता तो मुझे जो इंफॉर्मेशन है मैं इसको दूंगा। So it is based on that. It is not based on any rules and regulations. It is based on the relationship, the network, the emotions. Hello? सर 12 बजे क्या ट्यूशन? Who is speaking? सर 11 बजे। सर बाहर ही ठहरे थे सर। Who is talking there, Mukund? Class is going on. Okay, class. Okay, now after the definition, Abhishek, Lakshmi and all, now what is the features of informal organization? So what are the features? Features of informal organization. First is an informal organization originates from a formal organization. It is originating from a formal. Same चार्ट है, सेम ऐसे फॉर्मल के जैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन इज सेम लाइक दैट. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन originates from or within the formal organization as a result of personal interrelationship among the employees.
This is the first feature. It is originating from the formal organization, but as a result of personal interrelationship among the एम्प्लॉइज सेम है चार्ट सेम सिस्टम फॉलो होता है बट इनफॉर्मल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हर एक का रिश्ता दूसरे एम्प्लॉय के साथ जैसे उस हिसाब से चलता है दिस इज द फर्स्ट फीचर सेकेंड फीचर इज द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर okay the standard of behavior evolved from group norms means the standard of behavior develops from the group norms rather than ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी यहाँ ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बोलते हैं कि एमडी का ऑर्डर किसने फॉलो करना है परचेज मैनेजर ने परचेज मैनेजर का किसने परचेज एग्जीक्यूटिव ने परचेज एग्जीक्यूटिव का परचेज सुपरवाइजर फिर उनके एम्प्लॉइज सो ये जो सिस्टम है फॉलो करना बोलते हैं ये यहाँ नहीं रहता क्योंकि द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर डेवलप्स फ्रॉम ये रिश्ता किस तरह से डेवलप होता है इट डेवलप्स फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स अभी कैंटीन में जाके बैठे हैं ये सारे डिपार्टमेंट के बैठे हैं एक जगह जाके कैंटीन में चाय पीने बैठ गए तो ये परचेज वाले प्रोडक्शन को मिलते हैं प्रोडक्शन वाले फाइनेंस तो वहां पर एक दूसरे का रिश्ता बन जाता है किसी का किसके साथ क्लोजनेस होता है किसी का किसके के साथ दोस्ती अच्छी होती है किसी का किसके साथ एफिलिएशन अच्छा होता है तो उस वजह से क्या है रिलेशनशिप का बॉन्ड जो होता है अलग अलग होता है हर एक के साथ जरूरी नहीं कोई किसी का डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ अच्छा हो सकता है किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर का किसी सुपरवाइजर के साथ अच्छा होता है किसी सुपरवाइजर का किसी एग्जीक्यूटिव के साथ अच्छा रहता है तो ये रिश्ता इट इज नॉट लेड डाउन ऑफिशियली इट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप्स उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं यहाँ पर इज इट क्लियर लक्ष्मी एंड ऑल Yes, ma'am. ओके तीसरा फीचर इज इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन without specified direction of flow of informal are developed by group members. So यहाँ क्या है independent channels अपना अपना channels of communication कोई specified क्या नहीं है directions नहीं है अभी ये एक दूसरे के साथ communication है किसी का किसी के साथ यहाँ पर कोई directions नहीं है नहीं तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के लोगों के साथ ही बात करना है फाइनेंस वाला फाइनेंस के साथ ही बात करना है परचेज वाला पर यहाँ पर ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं है उनको कि कौन सा ग्रुप का कौन बंदा किसके साथ बात करना है सो यार इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग से कम्युनिकेशन किसने किसके साथ बात करना है किसने किसको रिपोर्टिंग करना है किसने किसको इन्फॉर्म करना है ये कोई इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट स्पेसिफाइड विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ओके ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय दिस ग्रुप मेंबर्स यहाँ पर ऐसे स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन कम्युनिकेशन नहीं है उनको बताया गया नहीं है फॉर्मल में वैसे है फॉर्मल में किसने किसको बताना है वो सब स्पेसिफाइड है इट इज वेल डिफाइंड मगर इनफॉर्मल में ऐसे कुछ नहीं है सो इट इज दिस कम्युनिकेशन इज नॉट डायरेक्टेड इट इज नॉट डेवलप्ड कि किसने किसके साथ क्या बोलना है दिस इज द थर्ड फीचर फोर्थ इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली मीन्स वॉलंटरी अब ऐसे मन से आ जाता वॉलेंटरली खुद के मन से मर्जी से है ना इट इज वॉलेंटरली स्पॉन्टेनियसली इट कम्स स्पॉन्टेनियसली मेरा रिश्ता उसके साथ अच्छा है मेरे मन में मैंने बोल दिया सो इट कम्स स्पॉन्टेनियसली इट कम्स वॉलेंटरली मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है अरे तू फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला है तू प्रोडक्शन वाले को क्यों बता रहा है ऐसा कुछ नहीं है ये मेरे मन में आ गया वो मेरा अच्छा रिलेशन है उसके साथ वो मेरा दोस्त है इसलिए मैंने बोल दिया सो इट इज कमिंग वॉलेंटरली नॉट फोर्सफुली खुद की मर्जी से आ रहा है स्पॉन्टेनियसली सो इट एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट ने कहीं पर भी बोला नहीं है तूने उसको ही रिपोर्ट करना है तुमने इसको ही रिपोर्ट करना है तुमने इसको ही रिपोर्ट ऐसे कुछ डेलिबरेटली मीन्स स्ट्रिक्टली ऐसे कुछ बोला गया नहीं है ठीक है तो दिस इज द another feature it has no definite structure it has no definite structure or form because it is a network of social relationship कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है अभी जैसे फॉर्मल में डेफिनेट स्ट्रक्चर है 3 डिपार्टमेंट्स है एमडी के नीचे कौन है परचेज मैनेजर परचेज एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर देखो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है उसने उसको ही बोलना है उसने उससे ऑर्डर लेना है उसने वही उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब डेफिनेट ये से इनफॉर्मल में कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है ये किसे बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन द सोशल नेटवर्क किसका किसके साथ अच्छा है किसका किसके साथ रिलेशनशिप खुद के मन से मर्जी से स्पॉन्टेनियसली वॉलंटरली दे आर इन्फॉर्मिंग वन अनदर दिस इज व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज इट क्लियर
Is it clear? Lakshmi, Yes, ma'am. Abhishek, Sahil, ma'am. Rohan. Now who has left? Mitali is not to be seen. Mitali is not to be seen. Abhishek, Kamar, Lakshmi Gaste, Om, Rohan and Sahil are there. Mukund. Now we'll go to advantages. Once you understand the basic concept, what is formal, what is informal. यहाँ पर hierarchy well defined, all rules and regulations are followed in formal. In informal, it is not well defined. There are no rules and regulations are followed. It is based on a social responsibility, social network, the relationship one has with the other person. It is based on that the informal organization goes on. Advantages, first is prescribed lines of communication are not followed. Advantage क्या है, यहाँ पर किसने किसको बोलना है ऐसे कुछ नहीं है, कोई किसी को भी बोल सकता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई किसी को बोल सकता है. एंड और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्टर. अभी किसको अगर डायरेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ बताना है तो या सुपरवाइजर इस डिपार्टमेंट का भी बोल सकता है. अगर ये डायरेक्टली इसी को बोलता है तो इसमें कोई गलती है तो ये करेक्शन कर सकता है. नहीं तो क्या होगा, ये बताएगा अपने एग्जीक्यूटिव को, फिर वो मैनेजर को, फिर एमडी को, फिर एमडी बताएगा प्रोडक्शन मैनेजर. कितना टाइम लगता है. मगर इसमें ऐसे कुछ नहीं, कोई किसी को भी बोल सकता है तो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पास होता है. तो क्या होता है, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्विक फीडबैक मिलता है, इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. दिस इज वन एडवांटेज. सेकेंड, इट हेल्प्स यू टू फुलफिल सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स. एक दूसरे के साथ रिश्ता, इमोशन जुड़ा हुआ है, अपना एक दूसरे का जरूरत भी फुलफिल हो सकता है. इनफॉर्मल के बजाय जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, ए मेरे इसमें ऐसा है, तुम्हारे में कैसा है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहता है. एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं. एंड डेवलप्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. इसकी वजह से क्या होता है, नहीं मैं परचेज डिपार्टमेंट का हूँ, मैं प्रोडक्शन वालों के साथ बात नहीं करूंगा, मैं प्रोडक्शन वाला हूँ, मैं फाइनेंस के साथ, ऐसे कुछ नहीं रहता. इसमें हर कोई किसी के साथ बात कर सकता है, ताकि क्या होता है, इसकी वजह से रिश्ता एक दूसरे के साथ, दैट सोशल रिलेशनशिप बिटवीन ईच, दैट बिलोंगिंगनेस, एक सारे हम एक ही कंपनी के, हम सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, बिलोंगिंगनेस बढ़ जाता है इसमें. Then it contributes towards fulfillment of और सब कोई, हर कोई अगर इकट्ठा ऐसे एक जैसे सोशल बिलोंगिंगनेस अगर होता है तो क्या होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सकता है. सो इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता रह के, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिलोंगिंगनेस के से एक जैसे समझ के कंपनी का काम करते हैं, तो इमीडिएट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव गोल फुलफिल होता है. डिसएडवांटेज क्या है उल्टा उसका, व्हेन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, तो क्या होता है, इस डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट को जाएगा, इसका इनको जाएगा, फाइनेंस वाला किसी और को. क्या होता है, रूमर्स के जैसे बातचीत करते हैं ना, गॉसिप होता है, कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसको भी, इनका इंफॉर्मेशन इनको जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो रूमर्स की जैसे स्प्रेड हो जाएगा. इज इट गुड फॉर द कंपनी देन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? देन व्हेन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड्स रूमर्स, इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर इस तरह का बात, कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, इनका इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस, पैसे के बारे में बाहर मालूम नहीं होना, या दूसरे डिपार्टमेंट वालों को नहीं मालूम होना कुछ है, तो फिर ये यूजफुल नहीं है. तो क्या होता है, दिस इज हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट डिसएडवांटेज. सेकेंड डिसएडवांटेज, it delays or restricts growth because management may not be able successful in implementing changes if the informal organization opposes them. अगर इनमें कोई बदलाव लाना चाहते हैं, अगर इनमें कोई चेंजेस अगर लाना चाहते हैं इनफॉर्मल में, फिर क्या होता है, ये डिले होता है, रिस्ट्रिक्ट होते हैं. तो इट विल रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होता है. इसकी वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट वाले दे विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट. अगर कोई इनमें कोई सिस्टम लाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि इनफॉर्मल है, कोई किसी को बोल रहा है, किसी के साथ चल रहा है, तो ये फिर ये लोग अपोज करेंगे. क्यों, हम क्यों सुनना है, हम उनको बताएंगे. अगर ये सिस्टम अगर इस तरह का है, तो वो लोग मैनेजमेंट को अपोज करेंगे एंड दे विल नॉट फॉलो एवरीथिंग. सो दिस इज नॉट यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इज, it pressurizes members to obey or follow the group expectations. फिर क्या होता है, ये expectations ज़्यादा बढ़ता है, pressure ज़्यादा बढ़ता है members के ऊपर. So this can be harmful to the organization if the norms set by the groups are against the organization.
अगर इस तरह का इनफॉर्मल अगर रहता है, फिर कोई सिस्टम नहीं रहता, ग्रुप्स में कोई क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहता, कोई किसी को बोल रहा है, कुछ का हायरार्की नहीं है, कौन सा भी मैनेजर कोई सुपरवाइजर के साथ भी बोल रहा है, सुपरवाइजर प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बोल रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर किसी एम्प्लॉय के साथ, देखो एक सिस्टम नहीं होता। फिर यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ये हार्मफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इट विल प्रेशराइज द मेंबर्स, फिर वो क्या होता है, प्रेशर के अंडर काम करे, फिर वो कौन सा भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय भी बोला है, चल तू क्या बोल रहा है, मेरा तो मैनेजर के साथ रिश्ता है, मैं सीधा उसको बोलूंगा। फिर क्या होता है, इस तरह का प्रेशर बिल्ड होता है एंड मेंबर्स में ओबेइंग, फिर फॉलो करने का नहीं, कोई भी किसके साथ भी बात कर रहा है तो एम्प्लॉय भी बोलेगा, कामगार भी बोलेगा, ए तुम क्यों बोल रहे हो मुझे, मेरा तो रिश्ता फाइनेंस के मैनेजर के साथ अच्छा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो यू, तो दे विल नॉट फॉलो और ओबे द ग्रुप